Until we are live, we can go ahead. Okay, thank you. Good evening and a warm welcome to Expert Talk series. My name is Akhil Rashid. I will introduce the Expert Talk series, the speaker, and facilitate the session. Jammu and Kashmir Policy Institute has initiated the Expert Talk series to engage experts, change makers, pioneers from various walks of life to understand the dynamic context of implementing the UN Sustainable Development Goals on its agenda. Today's session is a part of the Expert Talk series on SDG 4, and the topic of discussion is importance of mother tongue as the medium of education. We will be evaluating the scope of implementation of National Education Policy to 2020 through this topic. We have successfully concluded 29 sessions in the Expert Talk series with a focus on SDG 3, 4, and 5. Tonight, we are excited to conduct the session of the Expert Talk series on SDG 4 quality education with Professor Parveen Akhtar Pandit, who has been working in the higher education department, government of Jammu and Kashmir since 1986. She has headed Jammu and Kashmir's premier and historical higher education institutions, including SP College Srinagar, Institute of Advanced Studies in Education, Cluster University Srinagar, Women's College Anantnag, and Women's College Baramulla. She was appointed in 2018 as Controller of Examinations in Central University of Kashmir, and also performed duties as Director Admissions, Chairperson, Women Empowerment Committee, and Internal Complaints Committee till March 2021. She has worked periodically as in-charge registrar, in-charge finance officer of Central University of Kashmir. At present, she works as consultant, admission and academic affairs in the Central University of Kashmir since April 2021. We believe Parveen's vast knowledge and experience in this domain would be highly beneficial for all the attendees and would add great value to the event. On behalf of the entire team of JKPI, I welcome you, ma'am. Thank you very much for taking the time to be with us. Before I begin, here are some excerpts from the article titled Why Mother Language Based Education is Essential, which has been published on the UNESCO website. Research shows that education in the mother tongue is a key factor for inclusion and quality learning, and it also improves learning outcomes and academic performances. This is a crucial, especially in primary school, to avoid knowledge gaps and increase the speed of learning and comprehension. And most importantly, multilingual education based on the mother empowers all learners to fully take part in society. It fosters mutual understanding and respect for one another and helps preserve the wealth of culture and traditional heritage that's embedded in every language around the world. Uh, so Expert Talk series is a special initiative where we seek to source inputs and recommendations from experts in various fields pertaining to different sustainable development goals through one-on-one dialogue. So let's start today's discussion with my first question to Parveen, Professor Parveen is, early schooling in a child's mother tongue as recommended in the new national education policy can improve learning, increase student participation and reduce the number of dropouts. However, the experts believe that this would need new books, fresh teacher training and more funding. What's your stance on this? Good evening to all of you and Assalamu alaikum, Adab, Sat Sri Akal to all my dear colleagues, friends here. Let me first express my gratitude and thankfulness to all of you, to the JK Policy Institute, that they have invited me for this talk. Let me say one thing here. Let me make it clear here that I am not a teacher or a student, basically from the mother tongue, that is the Kashmiri, which we are talking about. But here and there, since I belong to the J&K State, UT, and obviously from Kashmir I am, and my culture, my mother tongue, my education, and my brought up and the services have been though from Kashmir. Obviously, I have my concern. We have all of us have the concerns about the mother tongue. And since
most important thing is that what we see in our mother tongue, there are so many questions about what, since long, there has been a wide discussion. There had been the different views from different schools of thought that what should be the means of communication for our educational system. Basically what we say, since we are linking the mother tongue and the means of communication with our educational system, we see basically every educational system needs that there should be certain objectives, and those objectives are to be achieved through curriculum. And but what is the means of communication, of achievement of or implementation of the objectives through the curriculum? Because curriculum is written in certain language. Our objectives are stated in certain language. We see in the most important, you have pointed out to the UNESCO statements, and everybody is, as on today, convinced with the fact that mother tongue is the most important and vital tool, technique of communication through which we can achieve wonders in education. See, so far as the early education is concerned, and when you have put it, you have collaborated a few things together. One is the communication. What should be the communication of the child at the early stage? Secondly, how the NEP 2020 has put it, and most importantly, how quality education. Three aspects are there, but all the three are interconnected. One, when we say early age, we have the child in our mind who has born and brought up at a certain place where they live and reside. Firstly, in the first part, they sit, we say there are three parents of the child. One is the family, second is the school, and third is the media. The first school of the child, when we say it is the family, that means the mother, the father, the other siblings, the grandpa, grandfather, grandmother, everyone who is there in the family. And their communication, their culture, their setup, their living, their social habits. What we say in education, the most important word we come across, that is the socialization. But socialization we get right from the family. And one of the most important part of the socialization, which is also part of the education also, that is the communication, that is the language. What we see when the child is in the lap of the mother, they go on expressing their love, affection, their what we say, मुस्कुराहटें देना, उनके साथ रोते हुए बच्चे को चुप कराना. फॉर एग्जांपल इन कश्मीरी ये बच्चे वादुन छावा इस दबो थपकर बलाय लगे. That means it has a different connotation than as compared to the Urdu sentence or whatever we borrow from the, not Urdu, Hindi or any other language. See, one most important part we should understand, that is there are जितनी भी languages हमारे बच्चों को, हमारे students को, हमारे फ्यूचर जनरेशन को आएगा, हम सबों के पास होगा, उतनी ज्यादा मजबूती हमें होगी. We will be the strongest, from strong to strongest, because that means we have the mastery of so many languages. That is the mastery. Here we don't say mastery. It is what we inherit from our parents, from our mother, from our family members, because this is the mother tongue is the tool, is the tool by which you understand each and everything which is done in the family. जुम्बिश है, जो अदाएं हैं, जो आपका उतार चढ़ाव, जो कुछ भी है, जब हम अपनी लैंग्वेज में घर में बच्चे के साथ गिंदा दब लागुन, गिरते गिरते संभलना, गिरते गिरते उठना, हंसना, रोना,
khana pilana, we give, that means the child, since we say the human being is a social animal, and we go on adding them the things which are natural. Because I am a Kashmiri, somebody must be from English, from London, they have their mother tongue English. जितनी frequency, जितनी emotional attachment, कश्मीरी में मैं एक चीज बोलूंगी, जब हम बोलते हैं गोबरा, गोबरा has a different emotional attachment with my child. बनिस्बती जब मैं उसको बोलूंगी बेटा, beta and gobra, gobra for me is giving a bigger meaning. Same is taken by the child. That is why we say the initial child, why is the mother tongue important for the child? Because this is the budding human being, जिसको अभी हम तरतीब ही दे रहे हैं, जिसको हम अभी नशो नुमा ही कर रहे हैं. और उसको इमोशनल सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है, बिकॉज फर्स्ट इयर्स ऑफ द एज ऑफ ए ह्यूमन बीइंग आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इमोशनल डेवलपमेंट, एंड इमोशनल डेवलपमेंट कैन बी बेस्ट ब्रॉट अबाउट by the mother tongue. This is one part. Now the second part, you have clubbed it, that is with the quality education, with the NEP first. Let me say something first about the NEP. What we say, you have put it, NEP says that it is multilingualism. They have put a focus on multilingualism. You can see that NEP is such a wonderful document where we see pages and pages together which are dedicated to the mother tongue, to the language. And the first concept, what we say, if you turn out the page number 5 of the policy, you will find bullet number 9 here. Categorically, it lays down that promoting multilingualism and the power of language in teaching and learning. Language जो है, we have to promote the multilingualism. See, जब हम बच्चे के जो ही हम, it starts right from the home, then pre-preparatory. When the child is at early childhood care, there we have to promote multilingualism, so that the more and more learning should take place. There should be teaching in multilingualism. There should be also learning in multilingualism. One most important point you lay down here is we have to consider the situation in the early childhood care schools, which has been also dealt by the NEP 2020 with the focus on how should it go ahead in Anganwadis, in other preparatory schools, how should it go ahead? That means when we say multilingualism, what is happening to us? Nowadays, we are finding that whenever we send our child to these preparatory schools, they are taught there the poems, they are taught there in Urdu, English, other languages, but not in Kashmiri. We teach them, because there is also, NEP has focused that what should we do in the early childhood care centers? We have to teach, we have to play way method, and we have to give the doses to the child for their development, emotional, cognitive, affective, and psychomotor, as well as which includes emotional development, physical development, social development, or all other things. When we talk of the emotional development, we teach, for example, we have the example of a poem. What we teach them, Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall, and so on. But with this all, we have not to ignore the English, the Urdu, the Hindi, or any other language, because all the languages are very important for the child. What we require also to give a focus to our mother tongue. अगर हम इसी टाइम बच्चे को साथ ही कश्मीरी में भी अपनी कुछ बिश्त बिश्त बैरो खुद खोवान तोर क्यों बोलो बबरे पान, they will imagine that, because Byor is she or he, the child has seen the Byor, the cat, when the mother was
saying that cat, go away. So they can very well take it. They can take so many lorries, and they can play also. They can sing songs. अगर हम ऐसा छोटा doses, we can't overburden the child. Child is simply to play with him. जहाँ पे एक बार Humpty Dumpty कहा, वहाँ पे दूसरी बार उसको दूसरी एक और कहा, कशिर पड़ दो, तो what we say, बिश्त बिश्त बारो, or some other lore. Likewise, we say, if we are making them to play, to give them the toys or anything else from other sides, we can also give them a small kangri, kangri, our fire pot. वो सामने रख सकते हैं. ये छोटी छोटी चीजें, whatever we have within our culture, which also reflects our language. Because when I translated fire pot can be taken to anything can be a fire pot. But when I say kangar, that has obviously, that what is the kangar, and kangar is directly connected with our culture. So we see, secondly, everywhere you will see so many pages where NEP is laying citrus on the mother tongue. For example, at page number 13, 14 and 15 again, I will point out only a few things. 13 में आप देखेंगे part 4.11 पे, what it lays down, that the medium of instructions until at least grade 5, but preferably till grade 8 and beyond, will be the home language, will be the mother tongue, local language, regional language. I quote it. Ye quoted words, I'm not using my words. These are the words from NEP 2020. That I quote, the medium of instructions until at least grade 5, but preferably till grade 8 and beyond, will be the home language, mother tongue, local language, and regional language. What does that mean? That we have to give the first doses of our education to the child through our mother tongue. Focus is on mother tongue. Multilingualism is there, but along with that, हो सकता है ज़्यादा burden हो जाए, but it is very important, very compulsory for us that we should involve the child in the teaching learning process through our mother tongue. अब एक और part आपने जो question का था, that was quality education. See, whenever I teach anything, now the concept of teaching has just changed. We facilitate the things. Whenever this learning happens, what we see, if we just manage this teaching learning process in such a language where there will be no communication gap. मैं कुछ और बताऊं और वो बताते बताते child तक क्या पहुंचेगा, that comes different, because we focus now today on the learning outcomes कि बच्चा ECC के टाइम हमें क्या सीखना चाहिए, थोड़ी सी बुनियाद, छोटी सी बुनियाद जो उसमें मिलनी चाहिए. अगर इसमें हमें कोई कम्युनिकेशन गैप होगा, because so many times a bigger population of the country, we see they are not so, their mothers are not so well read around their family members. They are so many of the children, they are first learners, they are the first generation learners, and we have to see जो ही हम उनको हम preparatory में डाल देते हैं तो वहाँ फट या तो दूसरी language, foreign language उनके लिए होती है, उसमें शुरू कर लेते हैं. So there starts the gap in knowledge, gap in learning. तो वहाँ learning होती ही नहीं है, टीचर कुछ और बताता है और चाइल्ड कुछ और सीख लेता है. लेकिन जब अपनी मदर टंग में हम शुरू करेंगे अपने बच्चे को लर्निंग करवाना, देखिए मैं लर्निंग का मैं चाहती थी आगे मैं बोलूं, तो लर्निंग पे आप मुझे बाद में पूछ सकते हैं कि लर्निंग हम किससे कहते हैं, कि उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है ये
शुरू होती है अर्ली चाइल्डहुड केयर, अर्ली चाइल्डहुड में ही। बिकॉज आपको मालूम है जब भी हम छोटा सा सीड बोते हैं, दैट वो स्मॉल सा होता है, देन इट बिकम्स द सैपलिंग एंड द बिग ट्री लाइकवाइज। और उसको उस जो ही वो बीज बोते हैं, जो ही हम शुरुआत करते हैं, इट रिक्वायर्स स्पेशल नरिशिंग, स्पेशल केयर। तो वहां से जितना ज्यादा केयर हम करें और केयरफुली हम उन तक वो जो हमने अपने लर्निंग आउटकम सेट किए हैं, ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, उसको जो हमें अचीव करना है, अगर हम उनको इजीली अपनी ही जबान में, अपनी मदर टंग में ही वो प्रोसेसिंग करें, जो जिस चीज के जरिए, चाहे म्यूजिक के जरिए, चाहे आर्ट के जरिए, चाहे डांस के जरिए, चाहे पोइट्री के जरिए, या किसी भी चीज के जरिए, खेलने के जरिए, तो वो अगर हम अपनी मदर टंग में करेंगे आसानी हम वो उन तक पहुंच जाएगा। तो रिजल्ट क्या होगा, हमारी एजुकेशन जो है, हमारे इनपुट्स जो है, रिजल्ट आ जाएगा कि वो क्वालिटी एजुकेशन बनेगी। और क्वालिटी एजुकेशन को डिफाइन करना बहुत बड़ी बात है। जी, आगे आप कुछ पूछ सकते हैं, तो देन आई कैन कंटिन्यू अगेन। जी प्लीज। Thanks for offering a comprehensive answer to a question that arises from the households. तो मैम, जैसा कि I have been reading comments on this live session, तो कुछ जो हमारे ऑडियंस है वो चाहते हैं कि हम कश्मीरी में बात करें या उर्दू में बात करें। तो तो अब मैंने आपको पहले ही बोला था, हाँ, जब हम कश्मीरी की बात करते हैं, क्वेश्चन पर बात कर रही। तो मैं बताना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस से कि जो हम बात कर रहे थे आज, तो ये पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली कश्मीरी लैंग्वेज पे नहीं था। तो हम जनरल एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि हम चाहते थे कि इसमें हर कोई लैंग्वेज, मदर टंग जिसको हम बोलते हैं, कोई भी मदर टंग हो, पंजाबी हो, हिंदी हो, कश्मीरी हो, उर्दू हो, तो उस मदर टंग के बारे में हम बात करें कैसे। अगर NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, जो उसका गोल है कि मदर टंग से इंस्ट्रक्शन एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए मदर टंग का यूज किया जाए, तो उसके मुतालिक हम डिस्कशन करना चाहते थे। तो मेरा जो दूसरा सवाल है मैम, जो मेरा दूसरा सवाल है कि आपने जो अभी तक जो आपने लगभग 10-15 मिनट बात की, उसमें तो अब हमें क्या सुनने को मिला कि बहुत सारे बेनिफिट्स है, बहुत सारे ऐसे हम बिल्कुल, मतलब अगर हम अभी करना शुरू करें कि हम डिस्कस करना शुरू करें कि कितने बेनिफिट्स है, तो ये बेनिफिट्स बिल्कुल भी कम नहीं होंगे। तो हम इनको डिस्कस करते करते बिल्कुल रात हो जाएगी। तो इन बेनिफिट्स को आपने, जो मेरा दूसरा सवाल है, तो आपने वो भी, उसका जवाब भी दे दिया। तो मेरा, अब मैं तीसरे सवाल पे आऊंगा कि जो मदर टंग इतना इतना एविडेंस होने के बावजूद, हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास रिसर्च सपोर्ट करता है इस आइडिया को कि जो ये मदर टंग है बहुत बेनिफिशियल है एक अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए। तो लेकिन उसके बावजूद भी जो है एक क्रेज है, एक नोशन है पेरेंट्स में कि वो चाहते हैं कि व्हेन व्हेन दे फाइंड देयर चाइल्ड स्पीकिंग इन इंग्लिश, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको लगता है कि हमारा जो बच्चा है, अगर ये इंग्लिश में बात करेगा तो बहुत आगे जाएगा लाइफ में। तो ये एक सोच है हमारे हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी सोच है, जो जो पेरेंट्स जो है बड़ा प्राउड फील करते हैं। इवन जो हमारे यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स है, तो वो बड़ा इसको हाईलाइट करते हैं अपने बच्चों को, जो है उनके जो बच्चे होते हैं, उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, उनके वीडियोस अपलोड किए जाते हैं कि ताकि जो बाकी सब पेरेंट्स है वो मुतासिर उससे हो जाए कि वो भी चाहे कि हम इस स्कूल में अपने बच्चे भेजेंगे, क्योंकि वो फिर इंग्लिश में बात करना सीखेंगे। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे मैम? हाँ जी, आपने बहुत सही, हालांकि ये क्वेश्चन जो है, ये सवाल जो है, ये सबसे पहले होना चाहिए था। जी जी। क्योंकि मैं ऐसा कहूंगी, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं कोई उस्ताद नहीं हूँ कश्मीरी की, ना ही मैं कोई स्कॉलर कश्मीरी की हूँ, बट आई एम सिंपली, मैं सिर्फ एक फर्द हूँ अपने
अपने कल्चर की, अपने जबान की। ऐसा नहीं है कि कोशिश करान थ्रो की। What we say that कश्मीरी जो है, क्योंकि अब हमने रेस्ट्रिक्ट किया, हम हर चीज को बोले, हर चाहे थ्रू आउट कंट्री, जहां भी हम जाएंगे, जहां जो भी स्टेट है, जहां भी जाए, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हम हर जगह देखते हैं कि ज्यादा लोगों को शर्म नहीं आती है अपनी जबान बोलते हुए। अब पंजाब जाइए, फ्लंटली वो पंजाबी में बोलते हैं। हम साउथ चले जाते हैं तो साउथ में तेलुगु में जाते हैं। आप ऐसा ना सोचिए कि हमें नहीं होता था। मैं साउथ चली जाती थी, मैं बहुत बार मैं वहां, जैसे मैं कश्मीर की थी ही नहीं, बात ही नहीं कर पाते थे। क्यों? आई डोंट अंडरस्टैंड। सबसे बड़ी बात है, हमें खुद में एहसास कमतरी है। हमें न जाने क्यों अपनी जबान में और अपने कल्चर में क्या खोट आती है। आप अगर देखेंगे अपना कल्चर, अपनी जबान, ये इतनी रिच है, ये इतनी जरखेज है कि इसमें आप देखिए, एक लफ्ज जितना मैं पढ़ाती रहती थी, तो मैं चूंकि हिस्ट्री की टीचर रही हूं, तो मैं जब एंशिएंट सिविलाइजेशंस पढ़ाती थी, तो वहां पे आता था टेराकोटा। अब मैं टेराकोटा का ट्रांसलेशन करते 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 मिट्टी को भूनना, वो ये अरे भाई, मैं विद नो टाइम, कतर इतना इंपॉर्टेंट। आप देख लिए, हम टेराकोटा की बात करते हैं और अपनी लैंग्वेज में एकदम आपको कतर मिलेगा। कतर छ ना, ये बान फुटान छी, मेच हिंद बान, तुह वुचू अजकिस बच्चस तरिया फिक्र, क्याजि अत यिथ पठ मे वोन, अस छ सारी जिम्मेवार अत। नंबर 1 पन मोल मोज, नंबर 2 सन स्कूल, सन वस्ताद, सोन स्कूल, सन बड़ जिठ, तो सोन मीडिया ते, सोन सराउंडिंग्स ते। अस क्या छ करा, अस फॉल्स प्रेस्टीज थमस। अस इंग्लिश जरूरी, ग्लोबल लैंग्वेज सो जरूरी गस आसनी। अस मा अख यूनिक आइडेंटिटी, बट एट द सेम टाइम we are the global human beings. We have to prepare our children for not for the local purposes only, but for the distant also, for the country, for the globe, whole of the world. तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि अपना हम भूल जाएंगे। जहां से पहले पौधा उगा है, वहां से तो आबियारी हो जाए पहले। तो इसके कारण हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे घरों में है, कुछ फॉल्स प्रेस्टीज रखने वाले लोग, कुछ माँ बाप जो कहते हैं, बच्चा जो ही कश्मीरी शुरू करता है बोलना, कश्मीरी में अपनी बात बोलना, ऊपर से डांट पड़ती है, क्यों बोला, चुप करो, ऐसे मुंह पे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते। मुझे समझ में नहीं आता क्यों क्या हमारे बच्चे नहीं बने जिन्होंने बच्चों के साथ कश्मीरी में बात की। तो सबसे बड़ी बात जो है, इसका बड़ा चैलेंज है, वो माँ बाप से है। क्योंकि माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा फटफट कभी कश्मीरी ना बोले। भाई, कश्मीरी में आपके पास नॉलेज इतना पड़ा है। नंबर 2, फिर स्कूल में चाहते हैं कश्मीरी का वहां पे नेमो निशान नहीं है, कहीं पे मिलता ही नहीं है कोई चीज जो कश्मीरी में होगी। या जो ही हम वहां खेलने बैठते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, why are you talking in English, in your mother tongue, why are you talking in other language? They appreciate that they should talk only in English or Urdu. तो ये एक क्रेज बन गया है अभी, देखो ना। और हमने ना, हम कश्मीरी रहते हैं, ना हम अंग्रेजी रहते हैं, ना हिंदी रहते हैं, ना उर्दू वाले रहते हैं। खिड़की दे दो, पशदूर आती है। इसका तो सत्यानाश हो गया है। भाई, मदर टंग में आप अगर बोलोगे, वी विल नॉट फील लो, आपकी पर्सनालिटी उभर जाएगी। और साथ ही हाँ, आपकी सेकंड मदर टंग इज योर ओन, जो आपको माँ की गोद से वरासत में आई, आपकी मिट्टी से आपको मिली है वो। और उसके बाद आप कितनी भी लैंग्वेजेस बोलो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन एनी इन स्पीकिंग एनी अदर लैंग्वेज और लर्निंग एनी अदर लैंग्वेज। लैंग्वेज जितनी ज्यादा आपके पास है, आप उतना ही स्ट्रांग हो जाओगे। तो हमारा फोबिया जो है, चाहे हमारे माँ बाप हैं और हमारे स्कूल के टीचर्स भी इसके जिम्मेदार हैं, हमारे स्कूल का माहौल भी जिम्मेदार है, और हमारा मीडिया भी आल्सो। मीडिया, आई डोंट से ओनली टीवी और अदर थिंग्स। आप देखिए कितने कश्मीरी न्यूज़पेपर्स हमें मिलते हैं,
बिल्कुल कम तादाद में। कैसे हम इसको प्रमोट करते हैं, अशन कशर पे कथ हेकान कर। This is all I think. And second thing, डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन अंग्रेजी से नहीं आती है। डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन आपके दिमाग से आती है। जब आप दिमाग की खिड़कियां खोलते हो एंड यू गो ऑन लुकिंग इनटू द थिंग्स एंड इनटू द पर्सपेक्टिव्स ऑफ व्हाटएवर आर अवेलेबल विद इन, सो उसमें ये हमारी गलती है, माँ बाप की गलती है, मोस्टली ज्यादातर पढ़े लिखे माँ बाप की गलती है। जो थोड़ा सा जिन्होंने नहीं पढ़े हैं, अनपढ़ माँ बाप हैं, वो तो बच्चों के साथ कश्मीरी में बात करते हैं, और वो भी बेचारे देखा देखी में ऐसी उर्दू उनको सिखाते हैं, ना वो कश्मीरी होती है और ना ही वो उर्दू होती है। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारे पास बहुत बड़ी चैलेंज है कि हम अपनी जबान को हमें बचाना है। हमारी जबान में वो खजाना है, प्रोवर्ब्स का खजाना है, लिटरेचर का खजाना है, पोएम्स का खजाना है, शायरों का खजाना है, जिन्होंने जो किसी भी चीज का हमें जवाब दे सकते हैं। और आपने पीछे देखा कि हाँ, हो सकता है कुछ लोग कहते हैं कि हमारी जबान में टेक्नोलॉजी का अभी यूज नहीं हो रहा है, लेकिन आपने पिछले ही लेक्चर में जब आपने देखा कि कैसे हम कश्मीरी जबान को के लिए भी टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगी, इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमें, जैसे एनईपी ने कहा है, कि हमें लैंग्वेज टीचर्स होने चाहिए, स्पेशलिस्ट लैंग्वेज टीचर्स। आई हैव आल्सो पॉइंटेड आउट सम ऑफ द किस किस पेज नंबर पे कहा है, क्या कि जो हमारे सुनने वाले हैं वो भी सोचे कि हमारे पास कितनी लैंग्वेज टीचर्स का होना कितना जरूरी है हर पेज में। चाहे आप पेज नंबर लास्ट के पेजेस 40 पे भी जाएंगे या इनिशियल पेजेस पे देखेंगे, तो वहां लिखा है कि लैंग्वेज स्पेशलिस्ट का होना बहुत जरूरी है। एक तो स्पेशलिस्ट का होना, और दूसरी बात, जो हमारे टीचर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। टीचर्स को हमें लामहल अर्ली चाइल्डहुड केयर से ही शुरू करना है। जो देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगी कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास 3 चीजें सामने आती है। नंबर 1 द ऑब्जेक्टिव्स, नंबर 2 द कैरिकुलम, नंबर 3 द इवैल्यूएशन। तो ऑब्जेक्टिव्स हमारी पॉलिसी डिसीजन से मिलते हैं और जो एनईपी में मौजूद है। शायद आप मेरी बात समझ रहे हैं कि जब हम ऑब्जेक्टिव, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें मदर टंग सिखाना है बच्चे को, तो हमें किसी की सैंक्शन की लाने की जरूरत नहीं है। तो कैरिकुलम के जरिए, अब कैरिकुलम में कौन चीजें हैं? कैरिकुलम में एक तो आपका टेक्स्ट बुक है जो अवेलेबल नहीं है, अब आने लगी है, बट अभी हमारा बहुत बड़ा गैप है। टेक्स्ट बुक्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जब हम अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं 8th स्टैंडर्ड तक, तो उस वक्त के लिए हमारे पास टीचिंग लर्निंग मटेरियल अवेलेबल इतना नहीं है, तो जो हम बच्चों तक पहुंचा दे। दिस इज एक गैप ये है। दूसरी गैप जो है, हमारे टीचर्स जो है उनको ट्रेन ही नहीं किया गया है। हालांकि एनईपी में क्लियरली लिखा है कि आप क्या करें, आप टीचर्स को ट्रेनिंग दें, प्री सर्विस और इन सर्विस। जब हम छोटा बच्चा है, जब हम इनको अपनी मदर टंग सिखानी है, उस वक्त के लिए उन्होंने रखा है 2 किस्म के टीचर्स पढ़ाएंगे बच्चों को आंगनवाड़ी में या दूसरी जगहों पे। तो कौन सा, अगर 10वीं जमात तक पढ़ा हुआ टीचर है, उसके लिए उसको फुल ईयर 1 ईयर कोर्स करना है, ताकि वो डिप्लोमा कोर्स हो जाएगा, वो ट्रेनिंग के लिए। और सेकंड जो है, अगर कोई 10+2 है टीचर वहां पे, उनको 6 मंथ्स का सर्टिफिकेट कोर्स करना पड़ेगा। आप बिल्कुल देख लेंगे, ये बहुत सारे पेज नंबर्स पे आप मिलेंगे कि उन्होंने क्लियरली कहा है, ये 13 पे भी है। तो उसका मतलब ये है कि टीचर्स को पहले हमें ट्रेन करना है, टीचर्स को ट्रेन करना है कि आपको मदर टंग में क्या क्या चीजें देनी पड़ेगी इस बच्चे को। क्योंकि कैरिकुलर में एक तो टेक्स्ट बुक आती है और टीचर का एटीट्यूड आता है। एटीट्यूड में ये आएगा कि जो वो हैट्रेड, जो बायस,
उसने पाल रखा है अपनी मदर टंग के लिए, जो उसने स्टबॉर्न एटीट्यूड रखा है अपनी मदर टंग के लिए, जो वो हेजिटेट करता है बच्चों को कश्मीरी में बात करने के लिए, वो चेंज हो जाए, उसका वो बिहेवियर चेंज हो जाए, और साथ ही उसका स्किल भी डेवलप हो, वो लिखे, कर बाकी अक्षर लिखे, जो बच्चों को सिखाए अर्ली चाइल्डहुड केयर से शुरू करके टिल द 8th स्टैंडर्ड। हम कहते हैं ना, जहां पे हमें न्यूमरेसी 3 आवर्स का होना बहुत जरूरी है, और साथ ही लैंग्वेज का भी। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी, हमें अपने एटीट्यूड को चेंज करना है, माँ बाप को चेंज करना है, और साथ ही हमारे टीचर्स को भी, और स्कूल के माहौल को भी, स्कूल क्लाइमेट जिसको हम कहते हैं ना, उसको भी चेंज करने की जरूरत है, और देखना है हम कितना बच्चे को नशो नुमा कर सकते हैं। जी, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। नहीं, बस आज हमने एनईपी के कुछ पेज भी पढ़ लिए हैं बिल्कुल। जी तो जी आपने इवेलुएट कर दिया, हमारा एनईपी भी इवेलुएट हो गया। तो मैं जी बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ कि मुझे बचपन में मुझे खुद भी थप्पड़ पड़ा है एक बार, क्योंकि मैं जी कश्मीरी में बात कर रहा था, तो मेरे जो है प्रिंसिपल है, तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा है, तो मुझे वो थप्पड़ आज भी याद है। जी तो बिल्कुल, तो मैं बताऊंगा आपको, जैसा कि आपने कहा कि सही कहा आपने कि जो बायस है, एक ना एक हेजिटेशन है टीचर्स में कश्मीरी लैंग्वेज को पढ़ाने के, जब वो हम पढ़ाते हैं क्लासेस में, या जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैंने रिसेंटली एक बच्चा है, सेकंड में पढ़ता है, तो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, तो उसकी कश्मीरी टेक्स्ट बुक मैंने देखी, तो ऐसा लगता है जब वो कश्मीरी हम पढ़ते हैं, या ऐसा उसको जो कंपाइलेशन है उसकी, जो कंपाइलेशन है, तो वो बहुत अजीब से है, मतलब वो ना ऐसे ऐसा लगता है कि सार्केज्म है, ऐसा ह्यूमर है कुछ, तो ऐसे हम्म। उसमें कुछ है, कंटेंट जो हम्म। है उसका कंटेंट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, सीरियस कंटेंट नहीं है। तो उस पे भी बहुत ये जो काम होना होना जरूरी है कि कंटेंट जो सिलेबस है, कश्मीरी सिलेबस है, उसको थोड़ा डेवलप किया जाए, उसको सीरियस बनाया जाए, ताकि मैंने बच्चों में देखा है कि बच्चे इंजॉय नहीं कर रहे होते हैं, वो बस अभी आपको कोई भी टेक्स्ट बुक आप उठा लो अभी कश्मीरी जबान की, तो आप देखेंगे कि आपको लगेगा, पढ़ के ही लगेगा कि ये एक फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है, बस ये एक फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है, और कुछ नहीं हो रहा है, बस किसी ने इस पे काम नहीं हुआ है, इसमें कोई सीरियसनेस नहीं है, इसको पढ़ाने के लिए जो स्कूल्स तैयार नहीं है। तो इस इसी के साथ में जी 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 मैं पहले इसी के साथ कनेक्टेड मुझे एक बात जी जी, याद आ बिल्कुल रही है, बिल्कुल, प्लीज वो प्लीज। ये है कि, या मैं कंटिन्यू करूं कि नहीं, आप बोल जी जी, रहे हैं प्लीज कुछ? प्लीज प्लीज गो अहेड, या, गो, नो नो, गो अहेड। मुझे मुझे बिल्कुल बिल्कुल आपने सही फरमाया कि हमारी टेक्स्ट, लेकिन हमने पहुंचाया कहाँ बच्चे को वहां तक कि वो टेक्स्ट बुक पढ़े? भाई, माँ बाप ने और टीचर ने बच्चे को इस काबिल तैयार ही नहीं किया है कि वो कश्मीरी जबान में जो लिखी हुई टेक्स्ट बुक है उसको पढ़ सके। वो तो बेचारे को, उसको तो तारे जमीन पे देखा है ना, अक्षर चेंज होना, अक्षरों को ऊपर नीचे हो जाना, तो हाउ कैन दे स्टडी इट? आपको मैं, आप क्योंकि हम एनईपी के विद रेफरेंस टू एनईपी में के बात हो रही है, तो आप पेज नंबर 14 पे भी देख लेंगे, 4.15 पे पॉइंट है, ये 4.15 पे आई कोट, मैं अपने अल्फाज नहीं है, एनईपी के अल्फाज है, बीइंग वेल एजुकेटेड इन वन लैंग्वेज, कल्चर एंड ट्रेडिशन is not a detriment but benefit to social, educational and technological advancement, अनकोट। तो ये देख लीजिए ना, हम जो बात कर रहे हैं, कि हम जो कर रहे हैं ना, अंग्रेजी में जिसने भी बात की उसको हम सोच रहे हैं कि ये जी एडवांसमेंट हो गया। दिस इज नॉट एडवांसमेंट। Advancement is when you get fully, when you understand, जब आप फुल्ली नॉलेज हासिल कर सकोगे, जब आप फुल्ली कॉम्प्रहेंड कर सकोगे चीजों को, जब आप फुली एनालिसिस कर सकोगे किसी चीज की, मींस जब हम बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट करें, तब हम बोलेंगे डेवलपमेंट हो गई। साथ ही जब हम बच्चे का एटीट्यूड अपने तालीम के जरिए, अपनी एजुकेशन के जरिए ऐसा चेंज करें कि वो लर्निंग ही लर्निंग हो जाए,
कि उसमें वैल्यू सिस्टम इनकलकेट हो जाए, वो एफेक्शनेट बने, गुड हैबिट्स हो उसके पास, उसका बिहेवियर मोल्ड हो जाए, तब हम कहेंगे उसको हम क्वालिटी एजुकेशन भी कहते हैं और डेवलपमेंट भी बात करेंगे, और तब भी हम कहेंगे एडवांसमेंट। अब इसका तीसरा पन्ना जो है इस डेवलपमेंट का, वो है स्किल, जिसको हम साइकोमोटर कहते हैं। स्किल, जब तक कि बच्चे को दिमाग को कुछ ना मिले और उसका बिहेवियर चेंज ना हो जाए, उसका वैल्यू सिस्टम डेवलप हो जाए और साथ ही उसका स्किल डेवलप हो जाए, जब ये तीनों चीजें हो गई तभी हम कहेंगे बच्चा एडवांस हो गया। वो हमें ये जरूरी नहीं है, और कम्युनिकेशन जो है वो सिंपली एक टूल है जिसके जरिए हम ये सब चीजें करवा रहे हैं। बजाते खुद जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में तो बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, वी नो दैट दे आर द स्टोर हाउस ऑफ ऑल नॉलेज, लेकिन जो हम नॉलेज इंपार्ट कर रहे हैं लैंग्वेज के जरिए ही तो कर रहे हैं। अगर ये हम अपनी लैंग्वेज में करते हैं इनिशियल स्टेजेस पे, देयर विल बी अ वंडरफुल डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ द लर्नर। तो दूसरी, अगर हम अपनी जबान में बात करते हैं ना, ट्रेडिशन, जो आपने क्वेश्चन भी रेज किया था, अगर हम बात करते हैं अपनी कल्चर में, मुझे अपने कल्चर का इल्म है, अगर मैं कश्मीरी में इतने अच्छी कोई भी बात कर रही हूँ, या तेलुगु वाला तमिलनाडु वाला तेलुगु में करेगा, गुजराती गुजराती में करेगा, तो इसमें कोई एडवांसमेंट की कमी नहीं आती है, बल्कि हमें इंक्रीज ही हो रहा है, हमारे नॉलेज को, हमारी डेवलपमेंट हो रहा है। अरे भाई, जितना हम अच्छा इल्म हासिल करेंगे उतनी हमारी पर्सनालिटी जो है ना वो चेंज होती है, और हमें स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी है। वो किसी भी चीज में देखिए, जो आपने एनईपी में एक और चीज जो है जो बहुत अप्रिशिएबल क्या, जो वो तो है ही ऐसा वेल डॉक्यूमेंट, वेल एनविजन डॉक्यूमेंट, जिसमें स्टेज वाइज अगर आप देखेंगे ना, जब भी प्री प्राइमरी से लेके आगे तक, अगर हम 8 साल तक ही बच्चे को कश्मीर की कल्चर, ट्रेडिशन और मदर टंग की बात करें, तो हम आराम से उनको दे सकते हैं वो सब। हम अपनी टेक्स्ट बुक्स तैयार कर सकते हैं, पोइट्री की, पोइम्स की, आर्ट की, ड्रामा की, बाकी चीजों की। और जब वो दूसरे लेवल पे पहुंचेगा, फाउंडेशनल पीरियड में जब होगा, तो हम वोकेशनल भी उनको दे सकते हैं अपने कल्चर के हिसाब से। हम उनको अपनी पोट्री, कातरी बान के क्रालक, बिकॉज आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन, जो ये चीजें अपनी चीजों के जरिए, जो मैं एक बार कहा था आपसे, वी हैव टू टॉक कश्मीरी, वी हैव टू थिंक कश्मीरी एंड वी हैव टू टीच कश्मीरी। तो टॉक करके करते, बोलते बोलते हमें उस बारे में सोचना है कि पेपर मशीन चीज के पर्चे बना, कल को तो ये एक्सटिंक्शन पे आ जाएंगे, क्योंकि क्राफ्ट और वोकेशन का बड़ा एम्फेसिस है इसमें अपनी एनईपी में। तो आप देखेंगे जिस स्टेज तक हमें कहा है कि ये कोशिश करो मदर टंग, दैट इज अप टू द एज ऑफ 8th स्टैंडर्ड तक आप देख लेंगे, तो वहां पे हम उनको अपने क्राफ्ट के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं, ट्रेडिशंस के बारे। और एक और यूनिक लफ्ज जो हमें पेज नंबर 53 पे मिलेगा एनईपी के पॉइंट नंबर है 22.4। वहां पे क्या लिखा, एक वर्ड देख लीजिए, वहां पे बात हो रही है लिंग्विस्टिज्म की और हेरिटेज की, और बात क्या कहते हैं, बात क्या आती है, अपनापन। आई कोट, अपनी जबान से आपको क्या मिलता है, अपनापन। ये अपनापन वहां पे एनकोटेड है। तो दैट मीन्स कि मदर टंग का होना बहुत जरूरी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, अ चाइल्ड, एंड आल्सो फॉर द इमोशनल डेवलपमेंट। मोर इम्पोर्टेंटली जो अपनापन, म्यून ये नबर कुन जाए गो दूर वो सोन कोशर दूर मुश्क हूँ जन दिस इज अपनापन, या वो आएंगे वहां से कोई यहाँ आएगा, बिकॉज our roots, language, they are the important tools for our enrichment. जी प्लीज, जी आप कुछ और पूछना चाहते थे? जी मैं बिल्कुल आपकी जो बात आपने कही उसी को मैं थोड़ा मैं भी ऐड करना चाहूँगा, जो कि यहाँ से बच्चे, मुझे याद आया जो कि यूक्रेन में अभी क्राइसिस चल रही है, रशिया यूक्रेन क्राइसिस।
तो मुझे याद आया कि रशिया जाते थे बच्चे पढ़ने, एमबीबीएस करने, या यूक्रेन जाते, चाइना जाते, या जर्मन में पढ़ाई करने जाते हैं। तो वहाँ पे ये जब जाते हैं तो उनकी मदर टंग में उनको ना पढ़ाया जाता है। तो उनको, उनके लिए इम्पोर्टेंट रहता है कि वो वहाँ वहाँ रशिया सीखे, रशियन सीखे, यूक्रेनियन सीखे, या जर्मन लैंग्वेज सीखे, या चाइना में चाइनीज सीखे। तो वहाँ पे आप Exactly. देखिए कैसे इन जो ये ममालिक है, जो ये कंट्रीज है, इन्होंने कैसे अपना जो अपनी जो मदर टंग कैसे ये प्रिजर्व कर रहे हैं, कैसे ये बाहर से जो, मतलब मेरे लिए तो मैं बिल्कुल सपने में भी नहीं सोचूंगा कि मैं कभी चाइनीज सीख पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा। लेकिन अगर मैं चाइना, बाई चांस अगर मैं चाइना गया तो पढ़ाई के लिए गया, तो मुझे वहाँ पे चाइनीज सीखना पड़ेगा। किसी भी किसी भी हालत में मुझे चाइनीज सीखना पड़ेगा। तो बिल्कुल। तो और एक बात जो है मैं कहूँगा आपसे मैम, जो और एक बात है कि बड़ा एक कंफ्यूजन है हमारे घरों में। क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं काम, वो मम्मी पापा के साथ एक लैंग्वेज में बात करते हैं। तो उनके जो ये होते हैं, उनके जो दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, तो वो शायद उर्दू में या अंग्रेजी में बात नहीं कर पाते, तो उनके साथ वो इंग्लिश में बात करते हैं। तो कोई और भी होता है घर में, तो उनके साथ किसी और लैंग्वेज में बात करते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन है। तो हम उस बच्चे का मदर टंग क्या रहेगा, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि उस बच्चे की मदर टंग क्या है? क्योंकि ये बच्चा जो है बिल्कुल भी, मतलब उसमें भी, उस लैंग्वेज में भी, जो आपने मल्टी लिंग्विस्टिक अप्रोच बोला एजुकेशन का है, लेकिन इसका जो मैंने देखा है कि नहीं, ये बच्चा उर्दू में सही से बात कर पाता है, अंग्रेजी में सही से बात कर पाता है, लेकिन कश्मीरी इसकी टूटी फूटी होती है। और फिर प्राउडली जो इसके पेरेंट्स होते हैं, इसके मम्मी पापा होते हैं, तो प्राउडली बोलते हैं कि हमारे बच्चे को कश्मीरी नहीं आती है, इसके साथ उर्दू में बात करो, इसके साथ अंग्रेजी में बात करो। तो मैम थोड़ा सा मैं आपसे सुनना चाहूंगा इस हाँ। बारे में, ये जो कंफ्यूजन है। ये तो सच है। तो समझ लीजिए हम शायद डिस्टॉर्शंस की ओर जा रहे हैं। हम डिस्टॉर्शंस की, हम अपनी जो पर्सनालिटीज है हमारे बच्चे की, जो हम चाहते हैं कि पर्सनालिटी एक ब्लूम हो जाए, हम शायद खुद को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। यू नो, हम वही मैंने कहा। तो ऐसे अल्फाज बच्चे बोलते हैं ना, माँ बाप भी कहीं जहाँ पे पढ़ा, या दादा दादी जहाँ पे हो, जब उनको रेस्ट्रिक्शन आती है। देखिए, बच्चा पैदा हो गया एक घर में, माँ बाप पढ़े लिखे हैं, दादा दादी अनपढ़ बेचारे हैं, सेकंड रिलेशन में थोड़ा पढ़ा थोड़ा मिक्सचर है, तो इस बच्चे की हालत बहुत रहम के काबिल हो जाती है। एक तरफ से माँ बोलती है अंग्रेजी में बात बोलनी है, पापा बोलता है नहीं उर्दू में बात करो, दादा दादी बोलती है कश्मीरी में बात कर रही है। तो ये इसका हाल जो है ना बहुत बुरा हो रहा है। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, मैं बॉम्बे जा रही थी, मुझे एयरपोर्ट पे हमें वेट करना पड़ा बड़ी देर तक। तो मुझे एक बच्चे से मैंने बात की, कल भी मैंने किसी से, क्योंकि आपने मुझे क्लू दिया कि हमें आखिर हुआ क्या है। तो हमने आज तक, मैंने कभी नहीं पूछा था छोटे बच्चों से आपको क्यों अच्छा लगा किस में बात करना, लेकिन आप लोगों से, जेके पॉलिसी इंस्टीट्यूट से क्लू लेके आई स्टार्टेड इंक्वायरिंग अबाउट, बिकॉज आई एम एन ऑब्जर्वर ऑल्सो। तो मैं बात करने लगी छोटे बच्चों से, रियली स्पीकिंग। तो मैंने देखा बच्चे बोलना चाहते हैं कश्मीरी, लेकिन जो उनके एल्डर्स हैं वो उनको बोलने नहीं देते। मैंने पूछा बच्चे एक से, तो आप बताओ कौन सी मजा किस में आता है? उर्दू में आता है, अंग्रेजी में। मैं कहा आपको क्या मिलता है उससे? खुश हो जाती हूँ। मैंने कहा कौन कौन खुश हो जाता है? मम्मी पापा भी खुश हो जाते हैं, टीचर खुश हो जाते हैं। मैं कहा आपको अच्छा नहीं लगता है क्वेश्चन पेट का रखना? मैं सिखा लाइक दिस। तो यस हाँ। और एक अजीब खुशी सी महसूस हो गई उसको, क्योंकि उसको लफ्जों के साथ जंग नहीं वहां पे करनी है, उसके लफ्ज उसको बिल्कुल सामने है, उसको लफ्जों का तोड़ फोड़ नहीं करना है, उसकी एक्सेसिबिलिटी है उन लफ्जों पे। वो एक, क्योंकि बेसिक है,
जब अगर हम उसको मदर रंग में बोले, जब एक ने एक चीज बोली दूसरे ने दूसरी, और ये कंफ्यूजन बच्चे में क्रिएट होता है। तो कंफ्यूजन क्रिएट होने से उसकी इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होती है, बिकॉज अगर जब भी उनको एक्सप्रेस करने होते हैं अपने थॉट्स, तो वो मुकम्मल जबान में नहीं कर पाते हैं। दे बिकम जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। तो ना ही वो, वही ना, खिड़की दे दो पोश्तर आती है, तू किधर रखा ये इतना, मतलब दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू आवर चिल्ड्रन। तो एक जरूरी है, मुझे मालूम है, देखिए मेरे बहुत सारे जो मेरी एज के, मुझसे छोटे जो है, मेरे बच्चों के एज के जो है, वो शायद मुझसे एग्री ना करे, क्योंकि वो कहेंगे देखो जी खुद बन बैठी तो हमें बोलती है कोशिश कर रहे हो, मगर ऐसा नहीं है। हमने अपने बच्चों को कश्मीरी सिखाई है। आप कहते हो मुझे मास्टर जी ने थप्पड़ मारा और आपने दूसरी बात कही, टेक्स्ट बुक में कुछ लिखा नहीं है। भाई जब हमें पढ़ना ही नहीं आता है, जब मुझ में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं बड़ी महफिल में, मेरा दोस्त कश्मीर से आया है और बाकी दूसरी लैंग्वेजेस के लोग हैं, व्हाई शुड नॉट आई स्पीक इन कश्मीरी? मेरी इमोशनल अटैचमेंट है उसके साथ, मैं अपने आप को बयान कर रही हूं उसके साथ, एक बिकॉज आई हैव ऑल्सो ग्रोन थ्रू ए प्रोसेस। हमारे बच्चे जो है वो एक प्रोसेस से जाते हैं। जब हम उनको मिली जुली जबान बोलते हैं, तो वो ना एक के साथ मिल पाते हैं, ना दूसरे के साथ, ना तीसरे के साथ। मे बी कुछ अच्छे अंग्रेजी दान बने बच्चे, बड़ी अच्छी फ्लंट इंग्लिश बोले, बाकी चीजें बोले, बट इतना काफी नहीं है। हमें डीप जाना पड़ता है किसी भी लैंग्वेज को। हमें देखते हैं कुछ कुछ स्कूल्स में कहते हैं कि बड़ा फ्लंट इंग्लिश अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन राइटिंग पावर उनमें नहीं होता है उतना। तो मैं यहाँ पे एक और चीज बोलूंगी, जब तक एक तो घर का माहौल, घर में लामाल क्यों हम शाय कर रहे हैं? अरे हमारे इतने, आज की विरासत हमारी इतनी बढ़िया है, तो मुझे बताइए हमारी सिविलाइजेशन जो कहां से शुरू होती है, मोर देन 3500 बीसी से ओल्डर है। तो व्हाई शुड वी शाई ऑफ? एक रिच कल्चर है, रिच ट्रेडिशन, ना भी हो जो भी है, हमारी विरासत, हम तो यहाँ है ना, हमारी ट्रेडिशंस है ये। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एट द होम। देन सेकेंडली इन अवर स्कूल्स आल्सो, जब हम प्री प्राइमरी की बात कर रहे हैं या अर्ली चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं, तो पजल्स तो कह सकते हैं ना, प्रत्सावना। जब मैं छोटी थी, मैं उस मोज रटान शामस अश्विन भाई बारन पतोस खोर छलान छलान उस पतवाना वन तो प्रत्स, और वो प्रत्स इतनी अच्छी थी कि आज तक हम सॉल्व नहीं कर सके। नोल्स ने काम किया है, नोल्स ने कश्मीरी लैंग्वेज पे इतना काम किया है कि उसने वो प्रत लिखी है पूरी, और वो दास्तानें लिखी है, जैसे जो हमारी नागराइसिस कहानी, उसका तर्जमा। मुझे बताइए जब हम वो पढ़ सकते हैं तो इतना हमारा रिच, प्रोवर्ब्स, प्रत्स स्टोरीज सॉन्ग्स अस हेको बच्चन कलर ते कशिर पे हेकोक ना वनित, यह सफेद, यह वजुल, यह लोदुर, पत वनतनस अंग्रेज पे, पत वनतनस उर्दू पे। घर से भी उर्दू टीचर्स का भी बहुत जरूरी है। जब हम 6 मंथ्स की बात कर रहे हैं या वन ईयर का कोर्स जो अर्ली चाइल्डहुड के टीचर को करना है, बहुत जरूरी है उनको। या जो आइंदा का इन सर्विस प्रोग्राम्स है प्रोफेशनल डेवलपमेंट के, वहां भी जो 50 आवर्स का उन्होंने रखा है, उसमें भी हम कोर्स ले सकते हैं, जिसमें 50% ऑनलाइन ऑफलाइन है। तो वहां पर भी हम टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जरिए उनको मदर टंग की अहमियत, मदर टंग का बोथ नॉलेज भी दे। जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा टू इम्पार्ट नॉलेज टू द टीचर्स एंड मेक देम अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड द कश्मीरी लैंग्वेज एंड लिटरेचर। देन सेकेंडली मोल्ड देयर एटीट्यूड, उनका बिहेवियर जो स्टबार्न है, हेजिटेंट है कश्मीरी बोलने का, मेक देम रिस्पेक्ट दैट, वैल्यू दैट। एंड थर्डली उनको स्किल भी डेवलप कर सकते हैं जो आपके पास, चाहे लिखने वाले, रीडिंग वाले हैं, राइटिंग वाले, या जो भी हम कह सकते हैं, चाहे लिसनिंग की स्किल हो, स्पीकिंग की स्किल हो, या रीडिंग की स्किल हो, या राइटिंग की स्किल हो।
along with the technological skills कि हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो वो चीजें जब होंगी, बोथ पेरेंट्स को भी अवेयरनेस आनी चाहिए, दे शुड बी sensitized, they should be aware that what loss we are doing to our society, and they should get motivated to make their children learn their own mother tongue. And also by learning mother tongue, they will be imparting them a love and inspiration for their culture and tradition. और साथ ही अपने आप को, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट है, आपने छेड़ा ही था पहले क्वालिटी एजुकेशन में, दिमाग को भी 3 H's का कॉन्सेप्ट में कहना चाहूंगी। हेड को कुछ देना है, हार्ट को कुछ देना है, और हैंड को कुछ देना है। एक इल्म जो दिमाग को नॉलेज देनी है, और एक एहसास जिसको हम हार्ट से रिलेट करते हैं। मे बी मैनी ऑफ यू विल नॉट एग्री टू मी, हार्ट तो एक मांस का पुतला है, बट आई टॉक ऑफ द इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। और साथ ही कुछ हाथ को दे दो, कुछ स्किल दे दो, कुछ काम करने को दे दो, only then we can say that yes, there can be the quality education. जी, next if you want to ask me anything. जी मैम शुक्रिया। तो मैम मैं पहले इससे पहले कि मैं एक आखिरी सवाल पूछूं आपसे, सवाल नहीं होगा वो, बिल्कुल एक आपसे हम कुछ जानना चाहेंगे। तो हमारे साथ अनहा है, अनहा इज विद अस, तो उनका कोई सवाल है आपसे, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अनहा आप आर यू देयर? यस सर, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि कैसे मदर टंग जो है वो लर्निंग प्रोसेस पर असर करती है प्राइमरी एजुकेशन में, शुरुआती एजुकेशन में, एंड उससे एक अच्छी बातचीत पे, एक अच्छी कम्युनिकेशन पे क्या असर आता है? ओके, शायद हमने बात की थी अनहा हम इस बारे में। हम जब अच्छे से बात करें, अर्ली आपने भी अर्ली चाइल्डहुड की बात की है। जब हम छोटे होते हैं, जब बच्चा छोटा होगा, जब उसके साथ हम ऐसी बात करें जो विदाउट फ्लॉ हो, ओपनली हम बात करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आर यू अनहा, आर यू कश्मीरी और यू आर व्हाट इज योर लैंग्वेज मदर टंग? I am not a Kashmiri. I am from Faridabad. But what is your mother tongue? I want to know. Mother tongue, if I say, it would be Urdu. उर्दू ना? हाँ ठीक है। सी उर्दू में जो आपको एक माँ शुरुआत में ही, जब आप पैदा वो अपने लैप में आपको ले रही है, आपको दूध पिला रही है, बच्चे के साथ खेलती है, जिगर बोलती कश्मीरी, क्योंकि ये जिगर लफ्ज है कश्मीरी का, ये ना उर्दू का, तो उसको बोलेगी जिगर करके। तो जिगर मीन्स समथिंग which will have an impact on the child, because it is the close bond of the mother and the child which makes them to express their love and affection to the child. Likewise, as we say in our Kashmiri, when we say lagi balai is मैं निछावर हूं आप पे, मैं सदके जावा। जब सदके जावा अगर हम कश्मीरी में कहें तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं जाएगा जो मेरी लोकल लैंग्वेज में, उसको इस बात पे जाएगा लगी बला, या आपको जितना सदके जावा में असर होगा उतना मेरे बच्चे पे, कश्मीर वाले बच्चे पे नहीं होगा। दिस इज नंबर 1, दैट इज थ्रू योर लैंग्वेज यू आर शोवरिंग द लव एंड अफेक्शन। And what national policy on new education policy 2020 says that अपनापन, वो अपनापन जो है वो हमें मदर टंग में ही मिलता है। और आपने rightly you said that the good communication, best communication, and that too in your mother language. बच्चा आग की ओर गया तो आपकी मदर बोलेगी नहीं जाना वहां, और उसका असर सही होगा as compared when she translates it into English. Don't go there, it is artificiality for you, for me,
being a Kashmiri, for example, I will say Otat Magas. Otat Magas will be my anger showering and my expression also, and my feeling part also. You know, that is why we say mother tongue gives you apnapan, जो हमें फॉरेन लैंग्वेज से नहीं मिलता है. Foreign language is very important for us. All the languages are important. We don't deny. That is why NEP talks here and there in every page near about multilingualism. But at the same time, what we say, that is very important. But at the same time, mother tongue, in the initial stages of your development, the mother tongue is the best whereby we can learn the things, small things, small छोटी छोटी बातें हम सीख पाते हैं एकदम से जब हम छोटे हो. और छोटे में जब कम्युनिकेशन जो हो, और एक और चीज जो कम्युनिकेशन का है, you must have characteristics of the communication, you know, that कि हमारा पोलाइटनेस, हमारा स्लो कम्युनिकेशन या प्यार भरा कम्युनिकेशन, यू नो, वो बेटर होता है, बेटर दैट इज इन योर मदर टंग रादर देन इन द फॉरेन लैंग्वेज और द अदर लैंग्वेज, बिकॉज द लर्निंग कैन बी डन बेस्ट बाय द मदर टंग. आपको मालूम है, मैंने अभी कहा था वी हैव अ चाइल्ड सॉन्ग, what we call that, बच बर्थ कुछ बोलते हैं, बच बर्थ ही बोलते हैं उसको, छोटे ना लोरी जिसको आप कहेंगे. जो लोरी का इम्पैक्ट आपको उर्दू में होगा वो हमारी अंग्रेजी में नहीं होगा. लाइकवाइज जो लोरी का इम्पैक्ट कश्मीरी बच्चे को कश्मीरी में होगा वो दूसरी लैंग्वेज में नहीं होगा. तो what I mean to say that जितना भी आप सिखाना चाहोगे अर्ली चाइल्डहुड में, अगर वो मदर टंग से सिखाए तो वो एकदम इंसान बच्चा सीख जाता है. आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. जी जी, शुक्रिया. तो बिल्कुल हम आप जो अभी बोल रहे थे कि जो हमें अभी सुन रहे हैं, जो ये डिस्कशन देख रहे हैं, तो वो सोचेंगे कि खुद मैम ने मतलब अपना करियर बनाया है, मतलब आप बहुत आगे आए हो करियर वाइज. तो अभी हमें बोल रही है मैम कि कश्मीरी में बात करो, तो ऐसा है. नहीं, मैं पहले जवाब दूंगी इस बात का, पहले आपको, आप आगे भी बोले. फिर देखिए मैम सही बोलेंगे, मेरे जो अभी आने वाली जनरेशन है, छोटी जनरेशन जो अब हमारे बच्चे हैं, वो कहेंगे मैडम ने इतना किया खुद नहीं. एक बात बोलूंगी, बोलना कश्मीरी में कभी नहीं स्टॉप किया. मैं जॉब भी करती थी, मेरे बच्चे पैदा हो गए, मेरा बेटा पैदा हो गया, मेरी डॉटर माशाल्लाह दे आर एट गुड पोजीशन नाउ. उन्होंने शुरुआत से घर के किचन से मेरे साथ कश्मीरी में बात की. मैंने पिछली बार आपको कहा न्यूज वाले न्यूज रीड करते थे कश्मीरी में, तो किसी ने बोला जख्मी हो गए इतने लोग, तो मेरे बेटे ने कहा ही इज रॉन्ग, उसको बोलना चाहिए छक लग गई. दे कैन स्पीक इंग्लिश. मेरा बेटा मुझे गाइड करता है here and there, और मेरी बेटी भी. देखिए नंबर 1 वी हैव टू स्पीक. आई सेड वी हैव टू टॉक इन इंग्लिश. पहले जो मैंने 3 T's का कॉन्सेप्ट दिया, टॉक इन इंग्लिश, टॉक इन कश्मीरी, बात कीजिए. मैं रेडियो का प्रोग्राम कर रही थी, वो व्हाट इज दैट, प्रागाश वर्सेस लेखन इंग्लिश पर. लिखती तो मैं थी इंग्लिश पे, लेकिन बोलती थी सब चीजें मैं कश्मीरी में, क्योंकि प्रागाश वाज द हिस्टोरिकल प्रोग्राम जिसको कश्मीरी में ही बात करनी थी. तो बोलना इज द बेसिक स्किल. वी हैव टू स्पीक. पहले फोकस है. स्पीकिंग में क्या प्रॉब्लम है, हम तो वो सीख सकते हैं ना, हम दूसरी लैंग्वेजेस भी सीख सकते हैं. स्पीक हमें बोलना पड़ता था, और साथ ही फिर मैंने लिखना भी कर पर कायदा ला के फिर हमने सीखा भी. उससे मैं और एनरिच हो गई न कि काम. वैसे हमारे बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा एनरिच हो जाएंगे जब वो अपनी कश्मीरी लैंग्वेज भी पढ़ेंगे और दूसरी लैंग्वेजेस. जी बताइए, आगे कुछ और बोलना चाहते थे आप अकील साहब? जी शुक्रिया मैम. तो जी मैं यही जो मेरा सवाल था, आखिरी सवाल यही था कि जो हमारा जो यूथ है, कश्मीरी यूथ है पर्टिकुलरली, या बाकी भी जो हमें देख रहे हैं अभी,
जिनको अभी हमारी ये लैंग्वेज समझ आ रही है, उर्दू समझ आ रहा है, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? एक मतलब लास्ट जो आपकी मैसेज होगी, और हम इसके बाद ना इस सेशन को एंड करेंगे। तो उससे पहले मैं आपसे कुछ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या सजेशंस, क्या रिकमेंडेशंस होंगी आपकी हमारे यूथ को, जो हमारी यंग ऑडियंस है, जो बिल्कुल मैंने जो आपको बताया कि जैसे हमने स्टार्ट किया था, मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में स्टार्ट किया था सेशन, तो बहुत सारे कमेंट्स, एकदम से बहुत सारे कमेंट्स आ गए कि क्या क्या हो रहा है ये, मतलब आप मदर टंग को। तो ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल व्हेन वी जब जब जैसे ही हम मदर टंग जो ये फ्रेज है, हम इसको दूसरे इंसान को हम ये बोलते हैं मदर टंग, जब हम बोलते हैं तो अपने मेरा जो ध्यान है वो कश्मीरी लैंग्वेज की तरफ जाएगा, क्योंकि मैं कश्मीरी हूँ। अगर मैं किसी और से मदर टंग बोलूंगा तो उनके लिए, जो हमारी ऑडियंस थी उनके लिए ये एक कश्मीरी डिस्कशन था, कश्मीरी लैंग्वेज पे डिस्कशन होना चाहिए था। तो लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि हमारा जो डिस्कशन ये था कि ये पर्टिकुलरली हम कश्मीरी लैंग्वेज पे नहीं कर रहे थे। तो फिर भी लेकिन हमने फिर कोशिश की कि मैंने सोचा कि नहीं, हम कश्मीरी में अगर बात नहीं कर पाएंगे तो भी हम उर्दू में बात करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसमें शमूलियत करें, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग। तो अभी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, बहुत सारे कमेंट्स भी हमें हमारे फेसबुक पेज पे लोगों ने ड्रॉप किए हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं हमारे फेसबुक पेज पे। तो इसका मतलब यह है, जो कमेंट्स आए हैं ये मैं कहूँगा कि जो जो ये कमेंट्स है बिल्कुल यंग ऑडियंस है, जो ये यंग यूजर्स है, निटिजन्स है, तो उन्होंने ये कमेंट्स लिखे हैं। तो ऐसा जैसा कि आपने कहा कि आपका अपना एक्सपीरियंस है, आप एयरपोर्ट पे थे तो आपने किसी से पूछा, किसी बच्चे से पूछा कि किस लैंग्वेज में बात करना चाहते हो आप। तो एक सख्ती है हमारे घरों में, एक सख्ती है, स्ट्रिक्टनेस है कि बच्चे को इंग्लिश में बात करनी है, उर्दू में बात करनी है। तो वो स्ट्रिक्टनेस जो है वो एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी भी कुछ कुछ रेबल्स हम उनको बोलेंगे, अभी जो रेबल्स है हमारे हमारे साथ अभी कुछ कमेंट्स शेयर कर रहे थे कि नहीं, हमें अफसोस है कि हमारी जो कश्मीरी लैंग्वेज है, जैसे कि किसी एक हमारे फेसबुक पेज पे कमेंट आया था कि जब हम अगर हम मिक्सअप लैंग्वेज करते हैं, जैसे हम उर्दू और इंग्लिश मिक्सअप करते हैं, तो कोई बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर हम उर्दू और कश्मीरी मिक्सअप करेंगे, उर्दू और अंग्रेजी मिक्सअप करेंगे, तो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। लोग मतलब ये उनको लगता है ये फनी है। तो ये एक चीज आप बताएंगे, तो उसके बाद, क्योंकि नहीं, आपका बहुत ठीक, जी जी, नहीं बहुत अच्छा आपने जो लास्ट में आपने बात कही ना, जब हम अंग्रेजी और उर्दू एक मिलाते हैं तो हम इट इज ओके, वी गो ऑन सेइंग इट इज ओके, ठीक है। लेकिन कश्मीरी और उर्दू मिलाते हैं तब हम कहते हैं हमें शाइनेस होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, है भी ऐसा, होता भी है ऐसा। बट एक चीज है ना कि अगर हम मिली जुली जबान करते हैं, क्योंकि तब हमें अबूर होता है, तब हमें बोलना बोलना आता है। कश्मीरी भी बोलनी आती है, उर्दू भी बोलनी आती है, अंग्रेजी भी, क्योंकि हम फिर मिक्सचर कर लेते हैं, नॉट एन इश्यू। जैसे मैं अभी आपके साथ कर रही हूँ, इट्स अ मिक्स्ड लैंग्वेज ना, जो मैंने अभी अंग्रेजी में कहूंगी, कुछ मैंने कश्मीरी में कहा, इट्स अ मिक्स्ड लैंग्वेज। दैट मीन जो बात मुझे कहनी है मैं लोगों तक वो पहुंचा रही हूँ। दूसरी बात होगी, जब हम इस एक लैंग्वेज के साथ स्टेप बॉर्डन एटीट्यूड करें, जब कशिर पर वर तो वर बापार सब मानो न पाने, then we say it is bias, it is prejudice, that we are feeling perhaps shy of speaking of our own language. Why should we be? लेकिन मैं एक चीज बोलूंगी, रोशनी की किरण मुझे जरूर हमें दिखती है हमारे नौजवानों में। बहुत अच्छा लगता है जब रिमिक्स गाने, चाहे एफएम में हो, रेडियो पे हो, टीवी पे हो या फेसबुक पे हो, बहुत अच्छा लगता है उन बच्चों को देख के। तब हमें एक उम्मीद जागती है कि हम मरे नहीं हैं, हम जिंदा है। मैं इस पे मुझे एक कोट मेरे सामने है जो एल्फंस डॉडेट ने लिखा है, द लास्ट लेसन, वो लिखते हैं, ये अंग्रेजी में है। क्या लिखते हैं? आई कोट, वी मस्ट गार्ड इट मीन्स द लैंग्वेज, we must guard it among us and never forget it. हमें उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए। जो आपका दूसरा सवाल भी साथ ही था कि
रिकमेंडेशन क्या बोल रही हैं आप, तो इसमें वो भी हमें निकल रहा है. वी मस्ट गार्ड इट, दैट इज द लैंग्वेज among us and never forget it, because when people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. जबान ऐसी चीज है जिससे आप जेलों के ताले भी खोल सकते हैं, because your feelings, you through your language you impart your feelings. आप अपनी feelings को दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरी लैंग्वेज में भी पहुंचाते हो, ऐसा कुछ नहीं है. मगर जो अपने मदर टंग के लफ्ज, मैं आप सिर्फ कश्मीरी की बात नहीं कर रही हूँ, आई टॉक ऑफ द एवरी लैंग्वेज ग्लोबली, एवरी country, every piece of land, every state, every UT, anywhere जो जहां की मदर टंग है, जो उसमें एक फीलिंग आपको मिलती है बात करने में, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है आपको बात करने में, जिससे आप बखूबी और आराम से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हो, उसको प्रोटेक्ट कर लो, क्योंकि यही तो है जो आपको जोड़े रखे हैं, वरना मुझे बताइए, इज इट द लैंड ओनली वी से कि मैं तमिल हूं, तमिलनाडु की हूं, इज इट द लैंड? वो तो अब तो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है. इट इज नॉट द पीस ऑफ लैंड, इट इज बेसिकली द ओवरऑल द ग्लोबल सोसाइटी. इस ग्लोबल सोसाइटी में हमारे पास डाइवर्सिटीज है, और डाइवर्सिटीज को भी मेंटेन करना है और ह्यूमन यूनिटी को भी मेंटेन रखना है. whether that is at the country level, that is at the global level, या कहीं भी हो, तो हमें अपनी जबान की एक तहफ़्फ़ुज़ उसको देना है, तहफ़्फ़ुज़ गार्ड करना है, क्योंकि यही है जिससे हम एक दूसरे को समझ सकते हैं. नंबर 1, नंबर उसकी पैटर्नेज कर रही है. माँ बाप को शुरू से रिकमेंडेशन भी है और साथ ही बात भी है कि हमें माँ बाप को इस एहसास कमतरी से बाहर निकलना है कि कश्मीरी लैंग्वेज, कश्मीरी में बात करेगा बच्चा तो सुकते में सुछन लोग नीचे नाजरे, उसको 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 बड़ी डिसरेस्पेक्टफुली देखेंगे. देखो, इन्हीं 2 लफ्जों की बात सुनो, जो मैं डिसरेस्पेक्ट की बात करूंगी, जो मैं नीचे नजरे की बात करूंगी, उनमें कितना इम्पैक्ट आता है. एक इम्पैक्ट है ना अपनी जो जो आपकी मदर टंग है, जो जब आप मुझे समझ पाओगे, जो सामने बैठा है मुझे, अगर मुझे कोई और लैंग्वेज का फर्द सामने बैठा है और मैं उसको इस जबान में बोलूं, तब इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है. सो व्हाट वी से व्हेन वी आर द चाइल्ड व्हेन सिटिंग एट होम, जब वो घर में बैठा है अपने उन माँ बाप के साथ, अपने उन रिश्तेदारों के साथ जो उसकी बात को समझे और वो उसकी बात को समझे, उसी बात में बात करो, उसी जबान में बात करो. नंबर 2, तो उसकी जब वो स्कूल पहुंचेगा, मास्टर जी ट्रेंड हो, मास्टर जी को भी अगर ना भी जबान लिखनी आए, बोलनी तो आएगी. Obviously we don't have interstate transfers, जगह तो सेम है ना, तो अगर सीखनी भी पड़े आपस की मदर टंग जो है, तो वो सीखना है. उसमें लिसनिंग भी, स्पीकिंग भी, रीडिंग भी और राइटिंग वाला भी करके बच्चे को जरूरी है. जो हमारे NEP में लिखा है, मैंडेट है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और प्री प्राइमरी में तक आपको बच्चों को मदर टंग में पढ़ाओ, क्योंकि उससे इमोशनल डेवलपमेंट हो जाती है. तो ये मैंडेट नंबर 1 है, दिस इज टू बी इम्प्लीमेंटेड वेरी स्ट्रांगली. नंबर 2, 3, टेक्स्ट बुक्स जो है हमें उनको रिव्यू करना है और दोबारा से देखना है, और उस काबिल टीचर को बनाना है कि वो खुद पहले उस टेक्स्ट बुक को पढ़े, अंडरस्टैंड करे और तब बच्चों को सिखाए. चौथी बात है स्कूल का फुल वातावरण जो है, क्लाइमेट जो है, हेडमास्टर से लेके चपरासी तक, उसमें वो शन योर शाइनेस, जिसको हम बोलेंगे शन द शाइनेस, शन द इनहेबिशन जो है, कशर पोट अगर कत कर सरी वो दपन हद सा वुचे में क्या गोमुत, वो चीज जो है अपने एटीट्यूड में चेंज लानी है. नॉलेज डेवलप करना है टीचर को और साथ ही एटीट्यूड में चेंज लानी है. और थर्डली हमें यूज करना है टेक्नोलॉजी का भी अपने
मदर टंग्स को प्रोटेक्ट करने में, उसको एनहांस करने में, एनकरेज करने में, और टीचर्स को ट्रेन करना है टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस, टूल्स एंड टेक्निक्स में जो भी है अवेलेबल, और उनको स्पेशल कोर्सेज देने हैं। तो स्पेशल कोर्सेज आपको ढूंढने नहीं है, वो ऑलरेडी दे आर देयर इन द NEP, चाहे वो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, चाहे वो प्री सर्विस है या इन सर्विस है। तो हमारे पास डाइट्स भी है, हमारे पास बाइट्स भी है, हमारे पास IISCs भी है, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है, तो वो सब मिलके टीचर्स को ट्रेन कर सकते हैं। तो दैट आल्सो इन्वॉल्व्स सम फाइनेंस टू, दैट इज ऑब्वियसली डियर। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट ओवरऑल द सोसाइटी हैज टू टेक a lead also। जब जैसे हम बात कर रहे हैं मीडिया में भी, कश्मीरी में बात करने में कोई मुश्किलात नहीं है। सो मैं सेमिनार्स में थोड़ा सा वीमेन रिलेटेड जब भी बात करती थी, तो वहां पे मैं सुब्रमण्यम भारती का एक स्टेंजा है जो उन्होंने लिखा है, द realm of knowledge we shall explore, we shall not lag behind man। जब मैं अंग्रेजी में बोलती थी उसका इतना असर नहीं होता था, जब मैं कश्मीरी में मैंने इसको तर्जमा किया, इल्मु खजान अस्कडौनोन अस्रोजोन मर्दन पात, इल्मु खजान आश सोनते अस्त बनाओ पानन कोनून। आप बताइए इसमें और उसमें कितना फर्क आता है? This is what I suggest, that it is okay, we have to learn English, obviously speak English, we have to learn other languages as well, or many languages, जितनी सीख सकते। मेरी एक गुजारिश है अपने छोटे बच्चों से, अपने न्यू जनरेशन से, कि वो बहुत सारी जबानें, ना अंग्रेजी की खाली नहीं, बल्कि जैसे आपने कहा मैं चाइना जाऊंगा, मुझे चाइनीज सीखनी है, उनको 6 months का कोर्स करना पड़ता है। तो आप जितनी जबानें सीख सकते हो उतनी सीखो, लेकिन अपनी मदर टंग को नहीं छोड़ो। दैट विल बी माय मैसेज फॉर द लिसनर्स। जी। तो मैम हमें लगा था कि 8 बजे तक हमारा ये डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन ये इतना मतलब इंटरेस्टिंग हो गया ये डिस्कशन कि हमें पता ही नहीं चला कि 8:30 भी बजने वाले हैं। तो इसका ये भी मतलब है कि जो ये हमारा आज का डिस्कशन है, इसके लिए और भी हमें कंटिन्यूअसली बात करनी चाहिए। हमें और भी जैसे कि आपने टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की कि टेक्नोलॉजी का बोला आपने कि कैसे टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करके ना कश्मीरी लैंग्वेज या कोई और भी मदर टंग हो उसको प्रमोट कर सकते हैं, या उस पर डिस्कशन कर सकते हैं कि कैसे हम मदर टंग को ज़्यादा इसको तरजीह दे। तो अभी आप जो हम अभी जो लाइव है हमारा, अभी जो लाइव सेशन है हमारा फेसबुक पे, तो इसकी लाइव सेशन के साथ साथ ये वीडियो है, ये फेसबुक पे रहेगा, ताकि जो और भी लोग हैं जो अभी नहीं देख पाए, इसको लाइव नहीं देख पाए, वो इसको बाद में देख पाएंगे। तो इसका मतलब है कि एक ऐसा चीज़ है, ये टेक्नोलॉजी ऐसा एक चीज़ है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जिसका हम बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसके साथ ही तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमसे आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और आपने हमारे साथ जो कि मदर टंग के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, तो उस पर आपने बहुत कुछ अच्छी बातें बोली, जिन बातों पे हमें हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ और भी कुछ सेशंस करें, और भी कुछ हम आपसे बातें करें इसी टॉपिक पे, इसी हवाले से, क्योंकि मुझे लगता है बिल्कुल एक इनविटेशन आपको ऑलरेडी मिल गई है मुझसे। तो मैं तो आपको इनविटेशन देने ही वाला था, नेक्स्ट इनविटेशन इस प्रोग्राम के लिए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जो बाकी सब जो कमेंट्स है हमारे फेसबुक पेज पे, जो मेरे पास अभी और भी मैसेज आ रही है मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे इनबॉक्स में, तो मैसेंजर पे, तो उनसे यही लगता है कि ये डिस्कशन जो है अधूरा रह गया है। अधूरा इसलिए नहीं रह गया कि आपने बिल्कुल जो भी सवाल थे उनका सही आपने जवाब भी दिया, और जवाब देने के साथ साथ आपने कुछ और भी ऐसी बातें कही जो बातें मैं आपसे
कह नहीं पाया, जो सवाल आपसे मैं पूछ नहीं पाया, उन सवालों का भी जवाब आपने दिया, जो मैं फिर जो सवाल मेरे जहन में आ गए थे बाद में जब ये डिस्कशन शुरू हुआ था, तो उन सवालों का भी आपने जवाब दे दिया। तो मुझे लगता है कि अभी अभी के लिए हम ये प्रोग्राम जो है इसको इख्तिताम करते हैं। तो इसके बाद हम चाहेंगे कि आप फिर से अपना कीमती वक्त हमें दे, फिर से हम किसी और जो कि इसी हवाले से इसी टॉपिक पे हम बात करें, इसी टॉपिक को हम फिर से एक दूसरी लेवल पे डिस्कशन हो इस टॉपिक पे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मेरे जो कोलीग्स हैं हमारे साथ, जो मेरे कोलीग्स हैं JKPI से, और जो हमारी ऑडियंस है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैम, परवीन मैम। शुक्रिया 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 आपका कि आपने मुझे दावत दी। थैंक यू। थैंक यू।